Hello student, today we will start the new chapter number 8, quadrilaterals. In the previous classes you have already read about the quadrilateral. So what is quadrilateral? Have you any idea? क्या होता है? आइडिया है आपको? क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं? देखो, just see. This is one type of quadrilaters which have a 4 sides, 1, 2, 3 and 4. It is called the quadrilaters. Clear? In this chapter we will read all about the quadrilaters, its property and the solutions. Clear? तो start करें? Yes. First of all, introduction. You have studied many properties of the triangles in the chapter 6 and 7. And you know that the joining of 3 collinear points in pair, the figure so obtain its triangle. Means आप 3 points को join करते हो तो वह एज ए ट्राइंगल फॉर्म होता है, ठीक है. और कोलिनियर है, अगर तीनों लीनियर होते तो ऑल 3 points आर लीनियर देन इट्स मेक द लाइन, बट ये कोलिनियर है 1, 2, 3 एंड तो इट इज कॉल्ड द triangle. Then now let us mark 4 points and see what we obtain in joining them in pairs in some order. Okay, जब आपने 3 point join किए तो हमको triangle form हुआ. अब जब 4 points हम भी join करते हैं कोलिनियर हो, then what we will get? 1, 2, 3, 4. तो what is this? It is quadrilateral. तो देखो फर्स्ट शेप देखो, सारे लीनियर है. 1, 2, 3 तो लीनियर है, देन 1 कोलिनियर है, ट्राइंगल. एंड दिस 1, 2, 3, 4 तो दिस वन शेप. तो 1, 2, 3, 4 डिफरेंस है ना सब में. तो देखो, नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर वी ऑब्टेन्ड अ लाइन सेगमेंट, and if 3 out of 4 points are collinear then get a triangle, and if no 3 point out of 4 are collinear we obtain the closed figure with 4 sides. तो example 3 and 4 ये. Such a figure formed by joining 4 pairs in order is called the quadrilaters. मतलब 4 points है उसको हमको ज्वाइन करना है तो जो शेप फॉर्म होगी इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर्स. देखो, इन दिस बुक वी विल कंसीडर ओनली क्वाड्रिलेटर्स of the type given 8.1 third this one, but not the given figure 8.1. so in this chapter we only learn about figure third. Clear? Not this type of quadrilaters, we will learn only this type of quadrilaters. Clear? अब देखो, such a figure formed by joining 4 points in an order of called a quadrilaters. This a quadrilater has a 4 sides. Clear? 1, 2, 3 and 4 and 4 angle 1, 2, 3 and 4 and 4 vertex A, B, C and D. 4 vertex. तो quadrilaters में क्या क्या कंटेन है? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 sides, सेकंड 4 angles, थर्ड 4 vertex. क्लियर? और ट्राइंगल में क्या था? 3 sides, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स. और ये क्वाड्रिलेटर है तो इसमें 4 होंगे. क्लियर? और एक और चीज, अब जो ए और सी को मैंने ज्वाइन किया एंड बी एंड डी को ज्वाइन किया तो ये मेरे क्या हो गए? डायगोनल, जिसको अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा था. तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल. तो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर द 4 साइडेड. A, B, C, D are 4 vertex. Yes. And angle A, angle B, angle C and angle D are the 4 angles formed at the vertex. Clear? Now join the opposite vertex A and C and B and D. Clear? अभी just हमने discuss किया था. तो AC and BD are 2 diagonals of the quadrilater ABCD. In this chapter we will study more about different type of quadrilaters, their properties and especially those of parallelograms. You may wonder why should we study about quadrilaters? Why? Because the quadrilaters and its property we use in daily life, in near you, around you. Clear? So just
look around you and you will find so many objects which are of the shape of quadrilaters. You may observe the floor, the wall, ceiling, window of your classroom and the background, each page of a duster and each page of book and the top of the study table. Clear? तो इन सब की शेप कैसी होती है? क्वाड्रिलेटर होती है ना. जैसे आपने बोर्ड्स देखा है, वॉल देखी है, आपने डस्टर देखा है, तो उनकी शेप पे एज ए 4 साइड्स होती है, तो इस शेप इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर शेप. क्लियर? तो जस्ट सी द एग्जांपल. बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड है, बुक है, टेबल्स है. ऑल थ्रू मस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड आर द शेप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स called the rectangle. We shall study more about quadrilateral and especially parallelogram because a rectangle is also a parallelogram. Parallelogram की आपने शेप देखी है? ऐसी अपोजिट साइड इक्वल होती है. क्लियर? तो rectangle is also a parallelogram. And all the property of parallelogram are true for the rectangle as well. Clear? Yes. अब angle sum property of the quadrilaters. अब मुझे बताओ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था. तो अब क्वाड्रिलेटर के तीनों 4 एंगल्स का सम कितना होगा? गैस करो. 360. क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है कि क्वाड्रिलेटर्स के 4 एंगल का सम होता है 360 डिग्री. तो लेट अस प्रूव करें. लेट अस नाउ रिकॉल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटर. द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360. Clear? This can be verified by drawing a diagonal and dividing the quadrilateral into 2 triangles. अब देखो हमने कोई quadrilateral लिया है, this one. अब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब डायगोनल खींचना है, AC. तो अभी मेरे 2 ट्राइंगल फॉर्म हुए, 1 and 2. क्लियर? 2 ट्राइंगल्स हो गए. तो ABCD है क्वाड्रिलेटर, ACB है डायगोनल. यस. तो व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ADC? अब ADC, अब कोई सा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन ट्राइंगल ADC लिया मैंने, अपर ट्राइंगल. देन DAC ACD प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू सम इक्वल टू 180 डिग्री. देन द लोअर ट्राइंगल ABC. यस, ABC लिया. देन CAB प्लस ACB, देन एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? अब देखो, कैन वी ऐड 1 and 2? 1 और 2 को ऐड करेंगे. क्लियर? अब हमने ऐड किया मीन्स RHS साइड ऐड होगी और LHS साइड ऐड होगी. क्लियर? तो अब RHS देख लो, ये पूरी LHS एंड ये RHS. ठीक है? LHS ऐड कर दो, RHS ऐड कर दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एज इट इज लिख लेंगे. DAC ACD प्लस एंगल D, ये फर्स्ट टर्म थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन. यस. फिर CAD ACB और एंगल B, ये सेकंड इक्वेशन थी. दोनों को ऐड कर दिया. अब इधर क्या हो गया? 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 हो गया. क्लियर? अब देखो CAD और CAB, देखो DAC और CAB, ये एंगल एक है कि नहीं? देखो इस एंगल को देखो, DAC DCA और ACB, ये पूरा एंगल C है कि नहीं है? पूरा. तो यस, मैं इसको एज एज एंगल C लिख सकती हूँ ना? बिल्कुल लिख सकती हूँ. तो बस मैंने यही किया, इसको लिखा मैंने. हाँ, एंगल DAC प्लस CAB, इसको एंगल A लिख दिया, और ACD और ACB को मैंने एंगल C लिख दिया. तो बस एंगल C पुट कर दी मैंने. तो एंगल A D ऑलरेडी था और B ऑलरेडी था. अब मैंने पुट क्या किया? एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री. तो हैंस प्रूव कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. क्लियर? यही हमको प्रूव करना था. हो गया. यस. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. देखो मोस्ट ऑफ आपको सारे पता होंगे कि क्वाड्रिलेटर के टाइप्स कौन कौन से हैं. तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी. तो लुक एट द डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स ड्रॉन बिलो. फर्स्ट, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी शेप है. सेकंड ऐसी है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें ये दोनों साइड पैरेलल है. थर्ड वन, दिस इज
आपको सोचते जाना ये ट्राइंगल, ये मतलब ये जो भी क्वाड्रिलेटर है वो कौन कौन से और क्या टाइप है, आप सब जो उसके नेम मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। थर्ड वन दिस, ये कौन सी है, फोर्थ वन। देखो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी ऑल साइड इक्वल है, इसकी भी ऑल साइड इक्वल है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, फोर्थ और फिफ्थ में। देखो आपको सोचते जाना। और फिफ्थ शेप मेरी ऐसी कुछ है, लाइक अ काइट। क्लियर। अब मैं बताऊं आपको, फर्स्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी 8.5 फिगर 1। अब 8.5 की सारी इमेज डिस्कस करेंगे कि यू आर राइट और नॉट, जो आपने गैस किया था ना वो आपका सही है कि नहीं है, करें क्लियर। फर्स्ट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, यस ये दोनों पैरेलल थी ना, तो यू नो दैट दिस इज अ ट्रेपेजियम, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। नेक्स्ट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, अब देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, और इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल, तो इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। देन नेक्स्ट in parallelogram MNRS फिगर 8.5 का 3, दिस डायग्राम, ये एज ए रेक्टेंगल दिख रहा है ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करें। नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल नेमली एंगल M इज राइट एंगल। देखो ट्राइंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में वन एंगल राइट एंगल होता है, वन क्या ईच एंगल राइट एंगल होता है, पर जस्ट में एज अ स्टार्टिंग में राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, देन अपोजिट साइड इक्वल होती है इसके, जो आप अपोजिट होती है ना, जस्ट अपोजिट वाली वो। व्हाट इज द स्पेशल पैराग्राम कार्ड, ट्राई रिकॉल, इट इज कॉल्ड द ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल। क्लियर, रेक्टेंगल है ये। नेक्स्ट द पैरेललोग्राम EDEFG, फोर्थ वन, ये वाला देखो। अब ये वाला कौन सा पैरेललोग्राम है, हैज अ ऑल इक्वल साइड, इसमें सारी साइड्स इक्वल है, एंड वी नो दैट इट इज अ रोम्बस। देखो रोम्बस की शेप कुछ ऐसी होती है जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती है। क्लियर। और जो मेरा स्क्वायर होता है उसमें भी ऑल साइड इक्वल होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं बताती हूँ आपको। इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट इसमें जो ईच एंगल है ना वो 90 डिग्री हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है। तो जो ABCD की फोर्थ इमेज है ना वो मेरी फोर्थ, ऑल साइड आर इक्वल, वी नो दैट इज कॉल्ड द रोम्बस। नेक्स्ट पैरेललोग्राम ABCD फिफ्थ इमेज है, A is 90 degree, I already told, A is 90 degree and all side equal, it is called the square। अब ये वाली साइड मेरी स्क्वायर है, फिफ्थ वन। अब देखो इन क्वाड्रिलेटर ABCD 8.56 AD equal to CD and AB equal to CB, two pairs of adjacent sides are equal, it is not a parallelogram, it is a kite। अब देखो डिफरेंस मैं बताती हूँ, इसकी शेप देखो आप कुछ, इसमें ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और अपर साइड वाली दोनों इक्वल है लोअर साइड वाली, तो ये तो मेरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं रखता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, सो इट इज कॉल्ड द काइट। काइट शेप होती है ना, पतंग जो आपने देखी होगी काइट की, वो शेप है ये। क्लियर। तो नोट दैट द स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल आर द पैरेललोग्राम। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर, स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। थर्ड वन रोम्बस, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। देखो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो रोम्बस, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखो स्क्वायर एज अ रेक्टेंगल भी है ना, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, चाहे उसमें चारों साइड इक्वल है, लेकिन वो एज अ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी रखता है। एंड ऑल्सो रोम्बस, और स्क्वायर रोम्बस भी है क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल है, तो वैसे रोम्बस की प्रॉपर्टी भी रखता है। देन अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, और जो पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम भी है, बिकॉज उसकी जो अपोजिट साइड है, 2 अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम में ये होता है।
पैरेललोग्राम में। क्लियर। अब काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, देखो काइट कोई पैरेललोग्राम नहीं है बिकॉज इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। नेक्स्ट, अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं है बिकॉज देखो ट्रेपेजियम की शेप मेरी ये थी, फर्स्ट वन ये थी कि नहीं थी, तो ये पैरेललोग्राम है क्या? इसकी दो साइड इक्वल है, अब रिमेनिंग टू साइड से वो पैरेलल नहीं है, तो वह इट इज नॉट द पैरेललोग्राम। इन अ ट्रेपेजियम वी रिक्वायर बोथ पेयर ऑफ पैरेलल, हाँ इन अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम में कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसकी बोथ साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं है, सिर्फ उसमें वन पेयर ही पैरेलल है, अदर नहीं है, इसलिए ये ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अब देखो ये फिगर देखो 8.6 के, आप दोनों फिगर ऑब्जर्व करो, एक फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। अब आप मुझे बताओ इस दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कहोगे मैम मुझे एक तो रेक्टेंगल लग रहा है, गुड। सेकंड आप बोलोगे मैम मुझे पैरेललोग्राम लग रहा है, वेरी गुड। दोनों फर्स्ट वन रेक्टेंगल है और सेकंड वन पैरेललोग्राम है। अब आप बोलोगे इन दोनों के एरिया तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जस्ट अपने दिमाग में आइडिया आ रहा है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इनको दोनों का एरिया तो बिल्कुल सेम होगा ना, क्योंकि शेप तो वही है, बस खाली थोड़ी ट्विस्ट तो कर दी। नहीं, पर ऐसा नहीं है। देखो आज एक नई चीज आपको पता चलेगी, देखना। हियर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीपी इंटू ए बी, अब पैरेललोग्राम का एरिया ये है डीपी दिस इंटू ए बी, दिस इज लेस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी इंटू सी डी इज एज डीपी जो है लेस देन एडी। जनरली स्वीट शॉपकीपर कट बर्फी इन द शेप्स ऑफ पैरेललोग्राम टू अकोमोडेट मोर पीसेज इन द सेम ट्रे। ओके, सी द शेप ऑफ बर्फी बिफोर यू ईट द नेक्स्ट टाइम। क्लियर। बिकॉज आपने कभी देखी है कि ना जो स्वीट शॉप पे हम जाते हैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ देखना आप इस शेप में ही होगी स्वीट्स, जो ऐसे कभी भी ऐसे शेप में स्वीट्स नहीं रखी जाती है, बिकॉज जनरली स्वीट शॉपकीपर कट बर्फी इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम टू अकोमोडेट मोर पीसेज इन द सेम ट्रे, क्योंकि एरिया कम होता है इसका तो मोर पीसेज हम पुट कर सकते हैं ट्रे में, और अगर हमने रेक्टेंगल शेप में काटी तो हमको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा और पीसेज कम होंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ जो बर्फी की शेप होती है वो पैरेललोग्राम शेप में ही होती है। लेट अस रिव्यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अभी तो हमने टाइप देखेंगे थे कि टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। तो करें स्टार्ट। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। कट आउट द पैरेललोग्राम फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर एंड कट इट along द डायगोनल। You obtain two triangles. You can say these. What you say about these triangles? आपने कोई पैरेललोग्राम लिया, उसको यहाँ से फोल्ड किया डायगोनल से एंड देन उसको कट किया, तो आपको टू ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। देखो अपर ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स है, ठीक है। प्लेस वन ट्राइंगल ओवर द अदर, टर्न वन अराउंड इफ नेसेसरी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्व दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब आपने कोई पैरेललोग्राम लिया, उसको आपने कट किया, मतलब डायगोनल से आपने कट किया, दो टू ट्राइंगल्स है, आपने फोल्ड किया, दूसरे को ओवरलैप किया, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। क्लियर। लेकिन आपने जैसे ही उसकी शेप घुमाई तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, एक पोजीशन पे ही वो एज ए कॉन्ग्रुएंट और ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। क्लियर। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम। ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब जो ईच टाइम आपका पैरेललोग्राम होगा ना वो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा, और what ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर। अब लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। थ्योरम 8.1 स्टार्ट करेंगे। देखो थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। समटाइम इन एग्जाम्स इन द बुक वी आस्क ओनली डायरेक्ट द थ्योरम्स। क्लियर। थ्योरम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, so you have to do all the theorems, clear, as well as question. तो theorem 8.1, a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles. ये हमको प्रूव करना है। Let ABCD is a parallelogram and AC be a diagonal. देखो ABCD कोई पैरेललोग्राम है और AC मेरा उसका
डायगोनल है। ऑब्जर्व दैट द डायगोनल AC डिवाइडेड पैरेललोग्राम ABC इनटू टू ट्राइंगल्स नेमली ABC एंड CDA। We need to prove that these triangles are congruent। क्लियर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ABCD कोई पैरेललोग्राम लिया, देन उसको AC एक मैंने डायगोनल से इसको कट किया मैंने। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो दोनों ट्राइंगल फॉर्म में ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमको ये प्रूव करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया? करें स्टार्ट। अब देखो ABC triangle ABC and CDA, note that BC parallel to AD and AC is a transversal। clear, AB and CD both are parallel because it is parallelogram, इसलिए अपोजिट साइड इक्वल होगी। और जो AC है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। कुछ याद आया? प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था जब टू लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, alternate interior angle are equal। clear, और the same side of the angle is addition is 180 डिग्री। प्रॉपर्टी याद आई? तो देखो अब हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज लेंगे। देन BCA दिस एंगल, ये एंगल क्योंकि Z पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल इट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट एंगल। देन BCA एंड DAC पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, AB पैरेलल टू DC है, then AC is the transversal। BAC और DCA पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, ये फर्स्ट वन हमने लिख लिया। उसके बाद में AC इक्वल टू AC, ये अब दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये मेरी कॉमन है। तो देखो टू एंगल्स एंड वन साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA की बाय द एंगल साइड एंगल रूल से। क्लियर, सो और डायगोनल AC डिवाइडेड पैरेललोग्राम ABC इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC and CDA। then we also find AB equal to DC and AD equal to BC। why? because if we prove the two triangles are congruent to each other then each side and each angle are equal, will be equal। clear, तो हम दोनों एंगल को हमने दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन उसकी हर साइड एंड हर एंगल मेरा इक्वल होगा। देन वी कैन इजीली से AB equal to DC and AD equal to BC। yes, this is another property of parallelogram state below। in a parallelogram opposite side are equal। अब जस्ट हमको पैरेललोग्राम दिया है एंड देन अपोजिट साइड आर इक्वल, हमको ये प्रूव करना है। तो बस सेम प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके देन वी कैन इजीली से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देन उसके बाद में आप साइड को भी आप इक्वल लिख सकते हो बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। क्लियर, चलो इफ द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, सो इट इज कन्वर्स। अब थ्योरम 8.3 देखो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, मतलब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब उसकी साइड इक्वल है तो हमको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। बस सेम वही, दोनों ट्राइंगल हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दीजिए। देन उसके बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल थी, देन उसके बाद में उसके एंगल भी इक्वल होंगे, तो आप ये वाला एंगल जो ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर सकते हो कि इक्वल है। अब जब ऑल्टरनेट एंगल है इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, और जब पैरेलल लाइंस है देन वी कैन इजीली से इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, तो देखो लेट्स साइड AB एंड CD इज अ क्वाड्रिलेटर ABCD एंड ऑल्सो AD इक्वल टू BC। AD जो है वो BC के बराबर है। अब ट्राइंगल ABC एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट। वाई? अब बताओ आप क्यों है? बिकॉज इसमें हमको गिवन क्या क्या है, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड कॉमन है, देन वी कैन इजीली से ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। क्लियर, ये वाई का रीजन बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, देन नेक्स्ट एंगल BAC और CD। अब देखो, अब जब दोनों एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब जब दोनों एंगल इक्वल हो गए, Z पे फॉर्म करें, इसका मतलब हैंस प्रूव कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गई आपस में, तो वी कैन इजीली से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, थ्योरम देखिए 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल।
अब पैरेललोग्राम हमको दे दिया और उसकी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमको ये प्रूव करना है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो नाउ द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स एंड रिजल्ट ऑफ पैरेललोग्राम लाइन इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल वी कैन सी दैट द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। सो वी हैव द फॉलोइंग थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट 8.5 थ्योरम देखो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो पूछा क्या है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर, कोई क्वाड्रिलेटर है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा हमको प्रूव करना है। तो देयर इज येट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, it is a new property. Let us study the same. Draw parallelogram ABCD and draw both its diagonal intersecting at point E. हमको ABCD कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, देन AC उसका डायगोनल है, हमको AC ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट को। मेजर लेंथ ऑफ OA, OB, OC and OD. What you observe? You will observe OA equal to OC or OB equal to OD. O is the midpoint of both the diagonal. Repeat this activity some more parallelograms. Each time you will find O is the midpoint of both diagonal. Just see the example 8.10. ये मेरा ABCD कोई क्वाड्रिलेटर था, देन आपने एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे किया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है ना, वो जो डायगोनल है AO डायगोनल OC के इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखना अगर वो पैरेललोग्राम है तो, और OD इक्वल होगा OB के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो अब देखो 8.6, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमको ये बताना है, बस जस्ट ये वाली हमने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करी ना, कि जब वो पैरेललोग्राम है तो वो आपस में इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, यानी बिल्कुल जैसे दो लाइन्स है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और अगर रिमेनिंग दूसरी लाइन है वो 3 है तो इधर वाली भी 3 होगी। मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? मतलब दोनों अगर 4 की है तो 4 ही होगी। अगर ये वाला डायगोनल मेरा 8 6 का है तो यानी 3 ये वाली होगी और 3 ये वाली होगी, इसका मतलब ये है। क्लियर? अब देखो now what would happen if in a quadrilateral the diagonal bisect each other will be the parallelogram. Indeed, this is true. This result is the converse of the result of the theorem 8.6 and it is given below. देखो ये सारी थ्योरम्स वाइस वर्सा है, मतलब एक अपोजिट पैरेललोग्राम पूछा है, देन हमको प्रूव करना है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। अब अपोजिट साइड इक्वल है, देन हमको उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरम फॉर्म हो सकती है और हमको एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बी प्रिपेयर फॉर द ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो हमको सबकी प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो मेरी थ्योरम 8.7, इफ अ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो जस्ट अपोजिट पूछ लिया, तो देखो नोट दैट 8.11 OA इक्वल टू OC, OA है वो OC के इक्वल है। यस, देखो 1 डैश है यानी वो दोनों इक्वल है, अभी डबल डैश है तो यानी OD इक्वल टू OB। यस, देन एंगल AOB, वेयर इज एंगल AOB? AOB दिस वन। क्लियर? और COD दिस वन। अब ये कॉन्ग्रेंट हैं। अब आप मुझे बताओ वाई, इस वाई का रीजन आप दोगे क्योंकि अब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है सारे क्वेश्चन की। तो अब आप मुझे बताओगे क्यों, चलो बताओ फटाफट। 2 ट्राइंगल मैंने दे दिया आपको। अब देखो उसमें आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल है इसके, दिख रहा है ना, A1 साइड इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, 2 एंगल। एक रीजन और मैं आपको नया बताती हूँ, जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते कि नहीं होते? यस, तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो मैं कौन कौन से बता रही हूँ, ये 2 साइड इंटरसेक्ट करिए तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल इक्वल होंगे। देन वी कैन इजीली से के इट इज AOB कॉन्ग्रेंट टू COD बाय द रूल ऑफ 2 जो साइड इक्वल है और उनके एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये इस y का रीजन ये है। क्लियर? आपको पूरा सॉल्व करना है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है कि y, क्योंकि ये तो बुक में लिख दिया, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी से यूज लिया, क्योंकि अब
सब जानते हैं कि अब आप काफ़ी होशियार हो गए और आपको सारी चीज़ें आती है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली वाई लिखा, ये आपका माइंड टेस्ट करने के लिए। बट आपको आती है तो इसको आप खुद से सॉल्व करो और खुद से लिखो। अब देखो नेक्स्ट, AOB दिस एंगल, ABO दिस एंगल इक्वल टू CDO दिस एंगल। हाँ, आप बताओ इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, बताओ। जब हमने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन बाय द सिम्प्लिसिटी रूल ऑल द एंगल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्लियर, देन वी कैन इजीली से एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय द CPCT रूल, क्लियर। तो AB पैरेलल टू CD, क्योंकि Z पे फॉर्म हो रहे ना ये एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल है। देन वी कैन इजीली से AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर। लेट अस टेक द सम एग्जांपल्स। करें, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलें आगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अभी वीडियो पॉज करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस सारे एग्जाम्पल करो, देन उसके बाद में 2 बार प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चन की, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। एक बार रीड करो, देन उसके बाद में वीडियो देखो, देन खुद से करो क्वेश्चन, देन आपको ये कन्फर्मली सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर। करें एग्जाम्पल 1। यस, शो दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ ट्राइंगल। क्या शो करना है? ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, सॉरी, जो मतलब रेक्टेंगल का जो ईच एंगल ना वो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। लेट अस रिकॉल व्हाट इज अ रेक्टेंगल। अब रिकॉल करो माइंड में कि रेक्टेंगल कौन सा था, शेप कुछ याद आई? रेक्टेंगल की शेप कुछ ऐसी होती कि नहीं होती है, अपोजिट साइड तो इक्वल होती है और ईच एंगल उसका 90 डिग्री होता है। अब हमको पता है 90 डिग्री होता है, लेकिन हमको प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। अब देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू शो दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब वन एंगल तो हमको पता है, अब ईच एंगल हमको शो करना है। जस्ट आपको देखो एक मैं आइडिया बताती हूँ। आपको पता है एंगल A 90 डिग्री और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? ये भी 90। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है जिसमें हमने पढ़ा था 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन जो इंटीरियर साइड में जो एंगल बनते थे उनका सम जो होता 180 डिग्री होता था। देन एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम। अब एंगल A 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 90, देन वो भी कितना हो गया? 90 डिग्री। देन ये 90 डिग्री है, देन अपोजिट एंगल वो भी 90 डिग्री होगा। अब इसका अपोजिट एंगल वो भी 90 डिग्री होगा। देन ऑल ऑफ देम एंगल आर 90 डिग्री, हेंस प्रूव। क्लियर, समझ में आया? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A प्लस बी 180 है क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब A 90 हो गया तो B भी मेरा 90 हो गया। C इक्वल टू A और D इक्वल टू B क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल, क्लियर। देन एंगल C इक्वल टू एंगल D ऑल्सो 90 डिग्री, देन हेंस प्रूव। करें एग्जाम्पल 2। शो दैट द डायगोनल ऑफ द रैम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो रोम्बस के डायगोनल है ना वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंसिडर द रोम्बस ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। वाई, देखो ये वाई क्वेश्चन मार्क इसीलिए है कि ये बताने के लिए कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आपको ये सारे रीजंस पता है, इसीलिए डायरेक्टली आपको रीज़न दिए बिना वाई कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि वाई का रीज़न क्या है। अब आप मुझे बताओ वाई क्यों, मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, वाई बताओ। देखो अब क्वेश्चन पढ़े एक बार अपन वापस। शो दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, क्लियर, रोम्बस याद आया? तो इसीलिए तो रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ABCD सारी साइड्स इक्वल हो गई। देन वी कैन इजीली से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब समझ में आया? देन AOD दिस ट्राइंगल एंड COD दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लिए मैंने। अब देखो OA इक्वल टू OC, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर। तो देखो अब इसके दोनों साइड्स इक्वल हो गई। देन OD इक्वल टू OD दोनों में कॉमन है। देन AD इक्वल टू CD, अब AD CD के इक्वल है। वाई, अब आप मुझे बताओ, बिकॉज इट इज अ रोम्बस एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस, देन वी कैन इजीली से AD इक्वल टू CD। देन
AOD and COD is congruent by the side congruence rule. Then we can easily say angle AOD, AO or D, this angle equal to COD, this angle. Yes, दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दोनों ट्राइंगल, देन बाय द CPCT रूल. अब देखो AOD और COD 180 भी हैं. अब एक बात बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं प्लस ये दोनों 180 भी फॉर्म करें, यानी इक्वल का मतलब ये हो गया कि वो दोनों जो भी, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 40 मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 80 है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों 40-40 के हो गए. क्लियर, ऐसे बोलोगे ना. तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 है और दोनों एंगल इक्वल है, तो आप यानी दोनों इक्वल हो गए, हाफ हाफ हो गए, यानी दोनों एंगल कितने हो गए, 90-90 हो गए. क्लियर. थोड़ी बहुत इक्वेशन आपको माइंड में भी करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना. तो बस AOD और COD इक्वल टू 180 लीनियर पेयर में है. अब 2AOD इक्वल टू 180, 2AOD क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे बाय द CPCT रूल. तो AOD इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था कि इसका जो एंगल जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे होना चाहिए. तो आ गया. अब एग्जाम्पल 3 देखो, ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC एंड AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल टू AB. अब हमको शो करना है कि DAC BCA के बराबर है और ABCD जो इज अ पैरेललोग्राम. देखो अब वापस एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब डायग्राम के साथ क्वेश्चन देखते हैं. करें, ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल. अब ये ABC है. देखो क्वेश्चन समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप विथ डायग्राम उसको समझो. एक बार आपने जस्ट रीड कर लिया, आप डायग्राम लो, जिसमें डायग्राम है तो आप उसके साथ देखो, अगर नहीं है तो पहले ड्रॉ करो डायग्राम. तो उसके बाद में आपका क्या माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमको करना क्या है. तो ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल. अब बताओ आइसोस्केल ट्राइंगल क्या था, याद करो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है. ओके, इन विच AB इक्वल टू AC. यस, AB AC के बराबर है. AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC जो, और AD जो है अगर इसको आगे ड्रॉ करते हैं तो वो PAC, ये मतलब पूरा एंगल इसको बाइसेक्ट करिए, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए. ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये यूँ कह रहा है. हाँ, एंड CD पैरेलल टू AB. अब CD का है, CD पैरेलल टू AB, ये इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है. अब हमको शो क्या करना है, हमको ये शो करना है कि एंगल DAC, वेयर इज DAC, ये एंगल और एंगल BAC. ओके, ये दोनों नहीं DAC, सॉरी ट्राइंगल नहीं था, एंगल है DAC, दिस एंगल ये इक्वल है BCA के, इस एंगल के इक्वल है. हमको ये प्रूव करना है. सेकंड, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पूरा जो है ना वो पैरेललोग्राम. ये हमको 2 चीजें प्रूव करनी. करें स्टार्ट. देखो लेट अस ट्राइंगल ABC मेरा कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है. क्लियर, आइसोस्केल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, देन AB एंड AC आर इक्वल, ये गिवन है. एंगल ABC एंड ACB एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स. ओके, हमने आइसोस्केल ट्राइंगल में ये पहले पढ़ा था कि अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे. तो यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. देन क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड. अब देखो, अब एक एंगल देखो PAC, ये वाला. अब ये पूरा एंगल इन 2 एंगल के सम से है कि सम होगा कि नहीं होगा, होगा. और ये बोला है कि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, अभी क्वेश्चन में बोला था ना. तो PAC इक्वल टू ABC प्लस ACB. ठीक है, PAC इक्वल टू, ओके, PAC ये जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और हमने अभी लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, और अपोजिट होने चाहिए, जस्ट पास वाला नहीं. तो देखो अब यानी ABC दिस एंगल और ACB दिस एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनके इक्वल लिख दिया मैंने. और PAC देखो, PAC और ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज आइसोस्केल ट्राइंगल है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ PAC इक्वल टू 2ACB, दोनों को ACB कर दिया. यस, अब एक चीज देखो, जो AD है वो मेरी इस एंगल को बाइसेक्ट भी कर रही है, करी कि नहीं कर रही है. तो PAC इक्वल टू 2DAC इस एंगल के बराबर है कि नहीं है,
बिल्कुल है। तो अब 2D PAC के इक्वल टू ACB भी है और PAC के इक्वल टू 2DAC भी है। अब 2DAC इक्वल टू 2ACB हो सकता है, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वल पुट कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया तो DAC इक्वल टू ACB है। तो ये एंगल और इस एंगल का इक्वल बराबर आ गया और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर। अब सेकंड चीज मेरे को ये प्रूव करने की पैरेललोग्राम है। तो नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स व्हेन द लाइन सेगमेंट BC एंड DC इंटरसेक्ट एट ट्रांसवर्सल AB। अब दोनों पैरेलल लाइंस है तो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो ट्रांसवर्सल AC है मेरी और ये कुछ लाइन। तो अब Z पे जो एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल कहलाते हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। तो यस, तो AB पैरेलल है AD के, सॉरी AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के। और जब आपस में पैरेलल हो गई देन इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल 4। अब इसमें देखो ये बच्चों ये सारे प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन की करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएंगे। इसको कम से कम 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको क्वेश्चन याद आ जाएंगे। हाँ, इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज ली थी, इसमें हमने ये वाला क्राइटेरिया लिया था, इसीलिए। तो आपको टफ लग रहा है तो घबराना नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है सारे क्वेश्चन की। क्लियर। जब आज वीडियो खत्म हो जाए देन उसके बाद में आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे कॉपी में, तो आपको ये सारे अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखो, 2 पैरेलल लाइंस L और M है, ये L है और ये M है, आर इंटरसेक्टिंग, ये कोई P से ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करती है। अब हमको शो करना है तो क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये जो अंदर जो एंगल बन रहा है ना वो ट्राइंगल है, मतलब जो फॉर्म हो रहा है ना क्वाड्रिलेटर वो हमको वो रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो इट इज गिवन PS पैरेलल टू QR and P ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट देम एट द पॉइंट A and C। मतलब ये कि P और Q दो लाइन से और P उसको इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे? A और Q पे। हाँ, A और C पे, A और ये C पॉइंट पे। क्लियर। और हमको ये प्रूव करना है कि जो अंदर जो फॉर्म हो रहा है ना वो रेक्टेंगल है। तो बाइसेक्टर PAC, अब देखो PAC, PA और C ये एंड ACQ, AC एंड Q, दिस वन। ये इन दोनों को देखो एक बार आप इंटरसेक्ट एट B। अब ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए दोनों अगर जो क्रॉस होके, एंड बाइसेक्ट ऑफ द ACR एंड SCC एट D, और ये दोनों बाइसेक्ट होके पॉइंट D पे जा रही है। क्लियर। तो वी हैव शोन दैट द क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो PAC ट्राइंगल देखते, एंगल देखते जाओ, PA और C ये एंगल इक्वल है ACR के। ये देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, और Z पर जो एंगल फॉर्म होते हैं वो अल्टरनेट एंगल, तो इक्वल है बिकॉज अल्टरनेट एंगल ऑफ L एंड M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये दोनों एंगल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, दोनों में हमने हाफ इंटू कर दिया। अब जब मैंने हाफ इंटू किया तो PAC का हाफ क्या है? BAC, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं इसको हाफ ऑफ PAC BAC लिख सकती हूँ और हाफ ऑफ ACR ACD लिख सकती हूँ। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए, दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइन AB एंड DC विथ AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड AB पैरेलल टू AC। अब देखो अब ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स, ये वाली जो पैरेलल लाइंस होगी ना तभी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। देन वी कैन इजीली से BC पैरेलल टू, सॉरी AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, और हमको ABCD पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो PAC और CS इज इक्वल टू 180 डिग्री, PAC और CA, सेकंड क्या है? CAS दिस, ये 180 डिग्री है ना कि नहीं, पूरा लीनियर पेयर है। यस, तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, पूरी इक्वेशन में हमने हाफ का इंटू कर दिया। तो हाफ ऑफ PAC मेरा क्या था बताओ? BAC था। हाफ ऑफ CAS मेरा CAD था, उसका हाफ एंगल हो रहा था ना, इक्वल टू 90 डिग्री।
अब BAC और CAD, BAC और CAD, BAC और CAD। अब ये देखो, ये पूरा एंगल है, इस एंगल का हो गया मेरा सम 90 डिग्री, यहाँ आ गया 90 डिग्री, और ये मेरा पूरा क्या है, BAD हो रहा था ना पूरा, यानी BAD मेरा 90 डिग्री हो गया। अब ABCD इज अ पैराग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, देन अदर एंगल ऑल्सो विल बी 90 डिग्री, देन ABCD इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल 5 एंड एक्सरसाइज 8.1 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके आइएगा, देख के आइएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे, और प्रैक्टिस करनी है मस्ट। ओके बच्चों, ओके।